श्रीगुरुभ्यो नमः। अभ्रमं बन्धरहितं अजरं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ಇಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅದು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿನೋತ್ಸವ. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡೆಗೆ ಆ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆ ಯುದ್ಧದ ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಡೆಗೆ ಮೇಜರ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಂದ್ರಾ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ವೇದ ಸಂಹಿತ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Namaskar sir, I'd like to welcome Major General Rajesh Kundra ji for giving us his precious time today. I would like to start his introduction. Sir is a Master's in Management Studies from Osmania University. He has done his Higher Defence Management course from College of Defence Management Secunderabad, Senior Defence Management course from Akhil Devi Ahalya University. He's also pursuing his doctorate in literature in leadership the Vedic way from Nagpur University. He has 37 years of diverse experience of leading a giant corporate, the Indian Army, at various levels. He is a certified practitioner of pranic healing, decade of motivational speaking training, spoken to diverse audiences from CEOs, senior office of tri-services to young professionals and students from across the country. He has trained foreign armies at Bhutan and at Alaska, USA. He has raised Siachen Battle School at the highest battlefield in the world. Has been an instructor at High Altitude Warfare School. He has led and undertook intense counter-insurgency operations. Yes, he has vast instructional experience in imparting knowledge in multinational environment, being instructor with US and Bhutan armies. He is a patron and chairman of Army and Kendriya Vidyalaya educational institutions. At present, sir is the director, he's working as Director Leadership and Skill Development as part of Galai Intellect e-learning and various universities. I would like to share sir's awards and achievements. Major General Kundra ji has been honored with the AVSM, which is Ati Vishishta Seva Medal, the Sena Medal. He has been awarded the Chief of Army Staff Commendation Card twice for outstanding administrative skills. Kundra ji has also been the coordinator of rescue operations during Uttarakhand floods in 2014. He has been the member of various high-level committees like manpower planning, perspective planning along eastern border. Sir has initiated skill development center for ex-servicemen and their dependents. He was also wounded in fighting terrorists in Patan in Jammu and Kashmir. Sir, we thank you for your service to Mother India. The podium is yours, sir. I hope I've done justice to your long career. We are extremely honored to have you here, sir. ಮೇಜರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಂದ್ರಾ ಇವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ದ ವೇದಿಕ್ ವೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಸ್ತರದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಸ್ತರ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೇಗೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಹಾಗೆ ಇದರ ವೇದ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳಾಗಲಿ, ಅದರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಳಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಡಕೋಬೇಕು, ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ AVSM ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ 2 ಬಾರಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂತಹ ಪರಿಚಯ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರವಾಹದ ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ನೆರೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು, ಆ ಜನರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅದು ಅದ್ಭುತ. ಅಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಈ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಂತಹ ಯುದ್ಧ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಗಳು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मेरा आवाज़ आ रहा है? आवाज़ गूंज रहा था काफ़ी, नहीं? ठीक है, आपको आ रहा है आवाज़? ठीक समझ, ओके. I think that should be fine. Thank you. I think that should be fine. आदरणीय श्री विश्व प्रसाद तीरथ जी स्वामी जी जो भी यहाँ पे नहीं है, थोड़ी देर में शायद आएंगे आपके. थैंक यू मैनेजमेंट. आई एम सॉरी फॉर नॉट रिमेम्बरिंग द नेम्स इमीडिएटली, पार्डन मी फॉर दैट, बट इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर. ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबके बीच यहाँ आया हूँ. मैंने फ़ौज में करीब 37 साल नौकरी किया है और मैं बहुत जगह गया हूँ पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में घूमा हूँ, पर जो अपने देश की बात है वो कहीं में नहीं है. आज कारगिल दिवस दिन है. 26 जुलाई 99 में ये जीत हमने हासिल की थी. कारगिल दिवस के बारे में आप सबने बहुत कुछ सुना होगा, फिल्म्स भी बन गई हैं, पिक्चर्स भी देखी होंगी आपने, लेकिन कारगिल दिवस इन सब चीज़ों से आगे है. कारगिल दिवस एक देश के इतिहास में एक मोड़ है. आवाज़ ठीक आ रहा है? नहीं आ रहा है? ओके ओके, इधर रखवा, मैं ले लूँगा. I'll do it. Yeah, not to worry, I'll do that. देश के इतिहास में कारगिल दिवस या कारगिल वॉर का एक अलग अहम है. सिर्फ एक लड़ाई नहीं है. या कैन वी रिक्वेस्ट देम इन केस इफ दे कैन स्टॉप ऑल दैट, बिकॉज टू मच ऑफ clatter is there. If it's feasible, can they quieten out a bit? There's too much of clatter if it's there. Thank you. कारगिल दिवस, जो कारगिल वॉर हुई, उसने देश का भविष्य बदली कर दिया. ये एक पहली वॉर है. इससे पहले हमने इससे बड़ी वॉर लड़ी है, पहले बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन देश को जो एक नया रुख मिला है वो है कारगिल वॉर से. कारगिल वॉर से क्यों मिला? कारगिल लड़ाई, एक पाकिस्तानी ने आके एक जगह कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करने के बाद वहाँ बैठे हुए थे, हमने जाके उनको निकाला
सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, कारगिल वॉर जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ी, जिस तरह से हमने उस पर जीत हासिल की, उससे पूरी दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ आ गया। उन्होंने पहचाना कि इंडिया एक अलग पावर है। इंडिया सिर्फ एक पावर ही नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। दूसरी चीज़ जो हमको कारगिल से मिली, जो पाकिस्तान ने हमारे के ऊपर अटैक किया था, कश्मीर को दुनिया में उजागर करने के लिए कि हिंदुस्तान कश्मीर में जो है बदसलूकियाँ कर रहा है, वो उसका उल्टा हो गया कि जिस तरह से भारत ने लड़ाई लड़ी और जिस तरह से भारत ने लड़ाई लड़के आगे पाकिस्तान को निकाला और जिस तरह से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, उससे पाकिस्तान जो है वो एग्रेसर दिखा। पूरे दुनिया में पाकिस्तान की पसंद नहीं किया उनके एक्शन को किसी ने, और यही कारण था कि पाकिस्तान जो वो करना चाह रहा था उसका उल्टा हो गया। तीसरी चीज़ जो इस लड़ाई से हम लोग को मिली है वो है साइऑप्स। पहली बार लोगों ने घर बैठ के लड़ाई को देखा, मीडिया ने आपको घर बैठ के पूरा लड़ाई दिखाया, पहली बार किसी को समझ आया। ये चीज़ बाहर के देश बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस काबिलियत को वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते थे अपने रिलेशंस बनाने में। भारत में इस चीज़ की कमी थी, हम इस चीज़ की अहमियत नहीं जानते थे, जिसको हम साइऑप्स बोलते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। कारगिल ऑपरेशंस में हमको सीख मिली कि इसमें हमने आगे बढ़ना है। और चौथी चीज़ जो हमने कारगिल ऑपरेशन से हासिल की वो है टेक्नोलॉजी। जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो हमने देखा कि वो लड़ाई में जो है हमको वो एडवांटेज नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी जो थी है उसको इतना ग्रहण नहीं किया। कारगिल के बारे में आप सबने बहुत कुछ सुना होगा, तो मैं कारगिल के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपको फौजी एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। मैं आपको फौजी एक्सपीरियंसेस बताऊंगा जो एक फ़ौज के बारे में बताता है और हमारे देश की एक तस्वीर सामने रखता है। कारगिल वॉर का ही एक किस्सा है। आप सबने टाइगर हिल का नाम सुना होगा। टाइगर हिल के अंदर जहाँ पे अटैक हुआ था, पाकिस्तानी जाके बैठ गए थे, वो पीक जो है कम से कम नहीं तो 17,000 फुट की ऊंचाई पे है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, बाहर ऑक्सीजन नहीं मिलती। आप चलो तो आपकी सांस फूल जाती है ऊपर चलो तो, और आप सामान लेके जब चलते हो तो आप लड़ नहीं सकते। उस ऊंचाई पे हिंदुस्तान फ़ौज ने जाके लड़ाई लड़ी और पहाड़ ऐसा है, पहाड़ की तरफ से ऐसे चढ़ रहे हैं, जैसे आप देखो ऐसे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और क्लिफ से चढ़ रहे थे। क्लिफ से चढ़ के ऊपर और पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर कब्ज़ा करा और कब्ज़ा करने के बाद उनको खदेड़ा वहाँ से। जब फ़ौज को पकड़ लिया था, हिंदुस्तान फ़ौज ने जाके वहाँ उनको खदेड़ लिया, उनको पकड़ लिया था उस जगह को, तो वहाँ जाके हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मतलब कि जब एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो उधर का जगह को ठीक करते हैं, क्योंकि उसके बाद अभी दुश्मन का अटैक आने का खतरा होता है कि अब दुश्मन वापस आएगा हमारे ऊपर। तो उसको रोकने के लिए आप जो है रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो जब ये रीऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिसमें कि अपना हथियार चेक करते हैं, अपना एमुनिशन जो है सब में बराबर बांटते हैं, खाना पानी देखते हैं, तैयारी करते हैं कि अभी आपके पास अटैक आने वाला है, उस दौरान पाकिस्तानी सोल्जर जो मर गए थे वहाँ पे, वो लोग सब उनकी लाशें फिरी हुई थी, गिरे हुए थे चारों तरफ। आप जैसे लोग थे वहाँ पे जो लड़ाई कर रहे थे हिंदुस्तान फ़ौज की तरफ से, उन्होंने इन सब लाशों को उठा के एक तरफ लगाया और जब दुश्मन का आने का खतरा कम हो गया उसके बाद उनको पूरे दिल से, जैसे कि एक सोल्जर को इज़्ज़त दी जाती है, उन सब सोल्जर्स को इज़्ज़त दिया, उनका वहाँ पे दफनाया उनके धर्म के हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात है। वही पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे एक हेलीकॉप्टर को उन्होंने गिरा दिया था। हेलीकॉप्टर के पायलट के 2 जवान नीचे गिरे, पायलट और एक और था, वो मर गए। उनके मरने के बाद उनके शरीर के ऊपर उन्होंने चाकू से गोदा उनको। ये फ़र्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा जाहिर करती है वो बात, कर लो आप, कर लो।
यू वांट स्पीकर लगाना है, लगा लो। नहीं, ओके ओके। जो चीज़ कारगिल वॉर में जाहिर होकर आई कि हिंदुस्तान के अंदर एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है क्योंकि वहाँ पे जवानों को किसी ने नहीं बोला था कि उनकी जो पाकिस्तान के सोल्जर्स उनको उठा के आप इज़्ज़त दो, लेकिन हर एक ने उसको इज़्ज़त दी। क्यों? वो आप जैसे लोग थे, जैसे आप लोग गाँव से, छोटे शहरों से आए, वो सारे के सारे सोल्जर्स गाँव और छोटे शहरों से आते हैं। हमारे परिवार में हमको संस्कार दिए जाते हैं कि इज़्ज़त करना, सोल्जर का धर्म सिखाया जाता है कि अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ तो किसी कॉज के लिए मुझे अपने देश के लिए देना है, तो इवन मेरे सामने जो लड़ाई लड़ रहा है वो भी किसी देश के लिए लड़ रहा है। जब वो मर गया उसके बाद उसको उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी कि मुझे। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये कैरेक्टर है, ये सब कैरेक्टर हम सब में है। कहाँ से आता है? हमारे परिवारों से, हमारे संस्कारों से, क्योंकि हमारे संस्कार हमको ऐसे दिए जाते हैं कि सबको मिला के चलने में। ये बहुत बड़ी बात है जो कि हम सब इसको समझते नहीं हैं। हम सब बाहरी देश का वेस्टर्न चीज़ को अपना रहे हैं और उसको देख के हम बड़े खुश होते हैं कि ये चीज़ अच्छा है। जो इंग्लिश बोलता है, जो बड़े स्कूल में पढ़ता है, अच्छी तरह से तैयार होता है, हम बोलते हैं हाँ ये बहुत बढ़िया आदमी है। जो देसी तरीके से बोलते हैं यार देसी है, देसी देसी नहीं है। हम लोग को इस बात का फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि लड़ाई में, जबकि सामने मेरी दुश्मन मेरे को मार सकता है, मैं उससे लड़ाई लड़ता हूँ, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आने के बजाय, जब मैं जीत जाता हूँ उसको गुस्सा आने के बजाय मैं उसके पास जाके उससे प्यार से उसको इज़्ज़त देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और इस सब चीज़ का हम सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप सब के संस्कार यही हैं। ये संस्कार हमारे हिंदुत्व से आते हैं, हमारे हिंदू रिलीजन से, जो हमको पढ़ाया जाता है। आप लोग वेदास कर रहे हैं। वेदास मेरे हिसाब से रिलीजियस डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक बहुत साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है। जो हम बाहर जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पकड़ते हैं उसको अपर विद्या बोलते हैं। वेदास पर विद्या है, हायर नॉलेज। जो हायर नॉलेज समझ लेगा तो छोटी नॉलेज जो अपर विद्या है, जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह, ये सब अपने आप आएगी, समझ आएगा उसको। तो ये चीज़ हम सबको बहुत फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे अंदर ये एक संस्कार है जो हमको आगे लेके जाना चाहिए। आपको मैं कुछ लाइफ लेसन्स बताता हूँ जो मैंने फ़ौज से सीखे, और वहाँ के हिसाब से। पहला था डेस्टिनी। हम सब बोलते हैं ना किस्मत है, वो ये होता है। ये चीज़ मैंने सीखा जब मैं 82 की बात है, 1982, 81-82 की, जब मैं फ़ौज के लिए तैयारी कर रहा था। फ़ौज की तैयारी होने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने कहाँ जाना है। जैसे आप लोग हैं ना, आप लोग तो तब भी सोच समझ के आए, वेदा सीख रहे हैं। मैं तो बिल्कुल केयरफ्री था, क्या करना कुछ पता नहीं, बस कॉलेज जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, कोई नहीं था। एक दिन मेरे को कॉल आता है, मेरा दोस्त बोलते हैं कि आ जाओ, हम लोग से मिल रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैं चला गया उधर, सारे दोस्त मिले थे, वो फॉर्म भर रहे थे। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं कि हम CDS का फॉर्म भर रहे हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का फॉर्म भर रहे हैं और तू भी भर दे। मैंने कहा मुझे नहीं जाना फौज में, मेरे को नहीं भरना। और मैंने कहा देखो, तो मेरा एक दोस्त बोलता कहता है तू भर दे, इसको हम दिल्ली में है इसका एग्ज़ाम, हम दिल्ली जाएंगे, घूम के आएंगे, वहाँ पे बो डेरिक एक इंग्लिश की पिक्चर आती, टार्ज़न द एप मैन, उसकी पिक्चर लगी, वो देख के आएंगे। तो वो पिक्चर देखने के चक्कर मैंने फॉर्म भर दिया कि चलो पिक्चर देख के आएंगे। दिल्ली गए, पिक्चर देखी, घूमे फिरे, सारे काम किए और एग्ज़ाम जाके वैसी मस्ती के लिए देर के आ जाते थे। गए, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम जब हुआ तो हम लोग 7 लोग गए थे दिल्ली, आगरा से दिल्ली के लिए। उन 7 में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया इलाहाबाद में। तो घर वाले बोलते हैं कि भाई तुमने जाना है इलाहाबाद? तो मैंने कहा घूम के आते हैं, प्रयागराज देख के आते हैं, संगम देख के आएंगे, क्या है, मुफ्त का मिल रहा है, खाना पीना रहना, जाते हो क्या आते हैं। मैं प्रयागराज आया वहाँ पे इलाहाबाद, और वहाँ पे जब जो SSB सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन के अंदर कम से कम नहीं तो 60 आदमी थे। एक बैच, अलग अलग बैच होते हैं, हमारे बैच में 60 आदमी थे। 5 दिन का इंटरव्यू कॉल होता है सिलेक्शन से। 5 दिन का कॉल हुआ, उसके बाद जो है
रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ। जब मैं वापस आया तो घर वाले बोल रहे क्या करना है, मैंने कहा चले जाते हैं, फ़ौज भी दिखाते हैं। ये इस तरह से मैं फ़ौज में आया। पर जब मैं फ़ौज ज्वाइन करने जा रहा था तो मैंने बैठ के सोचा कि कैसे हुआ है। तब मेरे जहन में बात आई कि हर एक चीज़ मुकर्रर होती है जो कि आपकी डेस्टिनी बनी होती है, लेकिन डेस्टिनी तभी खुलती है आपके सामने, डेस्टिनी आएगी आपके नज़दीक आके दस्तक देगी कि ये चीज़ है, पर वो तभी खुलेगी जब आप उसके लिए काम करेंगे। जब आप काम करेंगे तो आपकी डेस्टिनी आपके सामने खुलेगी। आपने पहुंचना वही है। अगर आप सही वक्त पे काम करेंगे तो सही वक्त पे पहुंचेंगे, नहीं तो आप देर से पहुंचेंगे उधर, तब तक आपका मुश्किल होगा। तो ये पहला लेसन था कि डेस्टिनी इज देयर, बट डेस्टिनी ऑक्यूपाई करने के लिए यू मस्ट वर्क फॉर इट। एक्शंस आर द सीड्स ऑफ फेथ, डीड्स ग्रो इनटू डेस्टिनी। एक्शन जो है, जो आप एक्शन करते हैं, वो आपके बीज हैं जो आपकी कर्मस बनाते हैं, डेस्टिनी बनाते हैं। तो ये चीज़ पहली सीख जो मैंने देखी वहाँ पे और मैंने सीखी वो ये थी। इसको मिस करते हैं। ओके, दूसरा लेसन जो मैंने सीखा ज़िंदगी में वो है लिविंग विद कॉन्शियस, अपनी आत्मा के साथ रहना। वो कैसे सीखा? ये है 1984 की बात, 84-85 की बात है। तब पाकिस्तान जो है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा कर रहा था। सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख, लेह लद्दाख के ऊपर जो है जगह है, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है दुनिया का। 75 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और ऑल्टीट्यूड है 20 से 24,000 फुट। 20 से 24,000 फुट। हेलीकॉप्टर जो है, जो छोटा चीता हेलीकॉप्टर होता है, वो उसके ऊपर उड़ ही नहीं सकता है। उसकी 20,000 की सीलिंग लिमिट है, 20,000 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। लेकिन इंडियन आर्मी उसके ऊपर भी जाके ऑपरेट कर रही थी। तो तब ये मेघदूत को लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई पाकिस्तान आ रहा है, उसको निकालना ज़रूरी है, उससे पहले कि वो पहुँचे हमको जाके ऑक्यूपाई करना है। तो उसके लिए ट्रेनिंग हो रही थी, बिकॉज इस तरह की लड़ाई पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुई। ये पहली बार इस ऑल्टीट्यूड पे लड़ाई का रुझान हो रहा था और लड़ाई के लिए जा रहे थे। हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, तो हमारी टीम जो थी हमारी ट्रेनिंग टीम तैयार की गई। हम लोग को जो है स्पेशल इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे अपने पहाड़ों में लड़ना है, माउंटेन वॉरफेयर, स्कीइंग का तैयारी किया गया। मैंने ज़िंदगी में कभी स्कीइंग नहीं किया था, मेरे को पता भी नहीं था पहाड़ कैसे होते हैं और ऊंचे पहाड़ कैसे होते हैं। पहली बार ज़िंदगी में हम लोग 20 दिसंबर 1984 में हम लोग को गुलमर्ग ले जाया गया और बोला गया कि आप लोग ट्रेनिंग करेंगे स्कीइंग के ऊपर। आपने स्कीइंग देखा ना, बर्फ़ के ऊपर स्की करते हैं, उसका ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ग्लेशियर पे वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो आपको ट्रेन होना चाहिए कि आप दुश्मन के पीछे जाएं स्कीज़ में और पीछे से आप अटैक कर सकें। तो उसका तैयारी कराया गया। तो ये जो है, ये इसका ट्रेनिंग हमको दिया जा रहा था गुलमर्ग में। हम लोगों ने करीब 20-25 दिन ट्रेनिंग किया, बिकॉज मेरे को ध्यान है 20 तारीख दिसंबर को पहली बर्फ़ पड़ी थी। बर्फ़ पड़ने के बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू किया और 20-25 दिन ट्रेनिंग करने के बाद हमारा इंस्ट्रक्टर था बहुत ही खड़ूस था, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत रगड़ा लगाता था, दिन रात हम लोग को तंग करता था। 20 दिन ट्रेनिंग करने के बाद हमको सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोलता है कि आप सबको जो है नेशनल स्कीइंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा नेशनल स्कीइंग में कैसे जा सकते हैं हम अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो हमने सीखा है, हमको कैसे बताओ, आप हमको नेशनल स्कीइंग में कॉम्पिटिशन में ले जा रहे हो। उसने बोला वो तुम छोड़ दो, तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम जो मैं बोल रहा हूँ वो है, तुमने वो करना है जो आज तुमने करना है। तुमको मैं लेवल दूंगा, तुम उसका तैयारी करो, मैं कल दूसरा लेवल दूंगा, उसका तैयारी करो। तुम उसको भूल जाओ कि पहले क्या हुआ या आगे क्या होगा। हम इंस्ट्रक्टर है, कोई ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते हैं, गुरु है। हम सब ट्रेनिंग करते थे। सुबह हमारी 7 बजे शुरू हो जाती थी और रात को 9 बजे ख़त्म होती थी। सिर्फ लंच ब्रेक बीच में मिलता था हमको। और जब पूरा चांद होता था तो तब हम लोग को रात को भी ट्रेनिंग कराते थे, रात को स्कीइंग कराते थे हमको।
बिकॉज पहाड़ों में बर्फ़ में रात के समय जब पूरा चांद होता है तो बहुत सुंदर वातावरण होता है, इतनी चमक होती है कि आप आराम से चल सकते हो, आपको सब कुछ दिखता है उसके अंदर। और हम लोग को गुलमर्ग में अगर आपने पहाड़ देखे हो 17,000 की फीट से हम लोग को स्की करके हम लोग 12,000 की फीट तक आते थे, 11,000 12,000 की फीट तक आते थे। एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए हमको 6-7 घंटे लगते थे पैदल चढ़ने। ऊपर चढ़ने के लिए 6-7 घंटे लगते थे। इसको रहने दो आप, या लीव इट लाइक दैट, डोंट वरी। हम लोग को सुबह शाम ट्रेनिंग दी जाती थी, हम लोग ट्रेनिंग करते होते थे। और वो दिन आए जबकि हमको नेशनल में पार्टिसिपेट करना था। हम सब लाइन में खड़े थे स्टार्ट पॉइंट पे। तो दिमाग में ये था कि हमने ये काम करना है, हमको बोला है करना, हमने पूरा अपनी जोर लगा देना, बस करना है। वहाँ पे लोग थे जिन्होंने 5-5 साल 6-6 साल से नेशनल में कर रहे थे, कोई एशियाड भी गया था, बाहर देशों में भी कंपटीशन लड़के आए थे। हम लोग 20-25 दिन की ट्रेनिंग के बाद उधर लग गए थे वहाँ पे। जब हम ट्रेनिंग करके वहाँ से स्टार्ट लाइन पे बुलेट फायर हुआ, फायर होने के बाद हम लोग ने चलना शुरू किया, तो अपना चल रहे थे, तो उसकी पूरी की पूरी जो रेस है वो करीब 6.5 घंटे की थी, चलती रही। जब आखिरी में हम लोग ख़त्म हो रहे थे तो मैं जब नज़दीक आया तो लोग बाग को मैं देखा चारों तरफ सड़क के खड़े हुए और चिल्ला रहे हैं, मेरे को वो इनकरेज कर रहे थे, चलो चलो तेज़ चलो। तो मैं हैरान था कि क्यों, मेरे को दिमाग में भी नहीं था कि हम जीतेंगे कहीं, मेरे को था कि रेस में पार्ट लिए हो रहा है। तब वहाँ से चिल्ला रहे थे, उन्होंने बोला आगे चलो, आपके आगे 2 बंदे हैं, आप 3rd पोजीशन में आ रहे हो, आप इनसे आगे निकलो। तो हमने तेज़ स्कीइंग करना शुरू किया और पूरी ताकत लगा के आगे निकले। और जब निकले तो आखिर में फाइनल पॉइंट पे जब आए तो मैं उनसे आगे निकल गया था और मैं नेशनल स्कीइंग जीत गया। जब पोडियम पे खड़े थे, जब मेडल मिल रहा था, तो तब मैं सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन हो गया। ये जो बंदे हैं पिछले 5-5 7 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं और 2-2 व 3-3 बार नेशनल स्कीइंग कर चुके हैं।